Okay, so I'm turning this towards Prashant Kumar. Hello. Hi, Prashant sir. Good evening, students. Am I Good audible? evening, sir. Good evening, sir. Yes, Yes, sir, sir. you're audible, sir. Okay. I will teach you IPC. So I'll first start with some definition part. That is, I want to just give you some PPT. Uh, anyone can tell me about IPC? Whatever you know, anything, anything you can tell me. What you know about IPC? So I know that general exceptions are from section 76 till 106. Yes, starting from 76 to 106. Uh, and in which chapter this is general Chapter exception? 4. Chapter 4, sir. Chapter Okay. 4 Oh, and 96 to 106 is private defense. okay, okay, okay. Private defense. Okay. And anything when this enacted? Do you know about IP? 1860. And who is the 1860s. Lord Macaulay. yes, Lord Macaulay, Yes, Lord who Macaulay. father of the IPC is called Lord Macaulay. And any other just like criminal in the criminal law, two more topics. Hello. Yes, sir. In Yes, sir. the Yes. in the criminal law, two more topics is just like criminal procedure code and the Yes, sir. CRPC is there. CRPC and IPC is there, and Indian Evidence Act. That Indian is Evidence Act. yes, that is also there. It is to So support both the acts. yes, yes, yes. When you will come in the faculty of law, you will study more about Indian Evidence Act in the second semester and CRPC in the also second semester. So I will first come from the. Actually, I'm in the new systems. Firstly, I have started to teach. Requested from Ahmad. So this is a new experience for me. But I'll try whatever I can do. So I want to know one thing. What? Anything you can ask me. So you are from the same place where Pappu Yadav is from. Yes, yes, Papu Yadav, Madhepura district. No, this is Okay. nearest district from me. So the uh, the first do you know about there is section 24. Anything about section 24? Do you have any knowledge about? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Dishonestly. Anything do you know about section 24? Dishonestly means what is the main of dishonestly? Anything anyone can tell me? Because this definition you can get in theft, because theft totally depend upon dishonest intention. If there is no any dishonest intention, then it cannot be theft. I'll teach you the section 378. There is theft discussed and the punishment in 379. So this topic will come in the last topic, but I'll start from the definition part because this will use in many definition part. Anyone can tell me about dishonest intention? Am I audible? So it is written. Do you want us to read? Hello. So do you want us to read? It is written. Yeah, no. And whatever you know about dishonestly, could you please explain? So dishonesty, it also involves intention, sir. If there is wrong intention, then it is not. Your initial process starts with dishonesty. This just like this is the definition in IPC, but I want to know about in general term. What do you know about dishonestly? Because in the IPC definition many things will be changed, just like definition also will be changed, and many topics just like fraudulently is also in the same manner, and reason to believe this will also come as a mens rea. Just like crime has two parts, mens rea, actus rea. Do you know this term,
Mens rea and Yes, sir. actus rea Guilty mind and Yes, and sir. yeah, guilty. Mens rea and actus rea. Guilty mind and wrong Guilty, act. guilty act. The magazine is actus non facitrium nisi mens sit rea. That is the a person cannot be convicted without the guilty mind. This is the magazine terms you will study in the first semester. What is the this you will be given more definition and more knowledge about this in the first semester. But just like the term is section 34. Do you know about knowledge of section 34? What is the section 34? so it is about common intentions. Common intention, sir. Okay, okay. Section 34 common intention. Yes, totally common, and this will depend upon common intention. When there is no any common intention, the person will not be convicted. And there's common object as well. So there's the No, difference. common object will be covered under other topics, but there is only common intention. Firstly, this topic the first ingredient is common intention. And the offense, what is the offense and crime? Anyone can tell me difference between crime and offense? Any difference between crime and offense? Things made impunishable in IPC, that offense, and crime crime में सर tort भी होता है. No, no, tort is not. Tort is a civil wrong, not crime. Tell me about any what is the offense and crime? Any differentiation between crime and offense? I'll सर ऑफेंस जो होता है सर वो आईपीसी में डिफाइन है और उसके लिए पनिशमेंट है, लेकिन क्राइम हर क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं है. okay, okay, yes. But crime crime is a every crime is offense. every no, no, no. Every offense is a crime, but every crime is not an offense. This will be the term. Yes, sorry. This will be Sorry. term. And injury, section 44 deals of the IPC deals with injury. You will know what in section 44 injury and section 53 punishment, total 5 kinds of punishment. This in which section BBI is written. That is the most important section for the entrance preparation. I have just marked because you will get the more easily you can get the what is the important topic and what is the important section. But you don't need to just remember the section. You need to remember the definition. What is the, just like if I'll ask you what is the injury, and maybe the option can be given in the manner injury can be just like first option body, second option mind, third option reputation or property, and the fourth option all of the above. So you can just take the option D option, because there is all injury can be in the body, mind, reputation or property, in all of the above. So this can be. And punishment, anyone know about punishment? What is the in how many types of punishment is in the IPC? 5. And what is the, just like you can tell me about in 5 how many? Means firstly, secondly, thirdly. Just like firstly is the death, secondly is the life imprisonment, the thirdly is the imprisonment. Maybe the 2 types of rigorous or simple. Rigorous means the hard labor, and the simple means only simple, just like 1 year, 2 year, 3 year terms. And the fourth is forfeiture of the property, and the fifth is fine. In this manner, the definition part. This is the definition part. So we can start from the section 11, person. So in the person, any company, association or body of persons, maybe one person can be the more than one person also can be any company, just like in which many in the company means any just like Tata, Reliance. This can also be the person in the IPC. This IPC also consider as any company as a person.
This is the section 11 talks about person, and the in the IPC section 22 deals with movable property. What is the movable property? Except corporeal property of every description except the first thing is land, whatever the just like land, only land, and if the land things attached to the earth, if anything is attached to the earth, that will also the not a movable property. This is the second thing, and the third is things which is permanently attached, fastened to anything which is attached to the earth. This will also covers under the movable property. So these three things, if you are accepting these three things, that will be under the movable property. And the section 23 deals with wrongful gain or wrongful loss. This is the based on section 24. In the section 24, dishonestly, the definition is whoever does anything with the intention. Here is the intention. Okay. Dishonestly, section 24 deals with dishonestly. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. This will be covered under the dishonestly means. So this term, wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, is section 23 deals with wrongful gain or wrongful loss. What is the wrongful gain and what is the wrongful loss? So the wrongful gain by unlawful means of property which the person gaining is not legally entitled, and loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled, and the other term is gaining wrongfully, that is the retains or acquires wrongfully, and the lose wrongfully, that means wrongfully kept out or deprived of any property. This is the terms. So I want to say, so यहाँ पे क्या हो रहा है, wrongful gain में क्या हो रहा है, यहाँ पे wrongful gain में unlawful means से प्रॉपर्टी को वो जो पर्सन लीगली इंटाइटल्ड था वो गेन कर रहा है, जो गेन बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड. जो पर्सन लीगली इंटाइटल्ड नहीं था वो पर्सन गेन कर रहा है प्रॉपर्टी, सो द रॉन्गफुल गेन हो जाएगा. और रॉन्गफुल लॉस में जो पर्सन लीगली इंटाइटल्ड था वो लूज कर रहा है, सो द लॉस हो रहा है बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड. सो दिस इज द रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस. कोई डाउट इस सेक्शन 23 में? हेलो, No, sir, you are clear. ओके. और सेक्शन 24 में कोई डाउट? No, sir. फ्रॉडुलेंटली, जैसे कि सेक्शन 25 है फ्रॉडुलेंटली, तो इसमें क्या है, डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड. डिफ्रॉड मीन्स डिसीव. अगर यदि कहीं भी डिफ्रॉड टर्म दिख रहा है तो हम उसको फ्रॉडुलेंटली में देंगे. और अगर यदि डिसऑनेस्टली में क्या होगा, दो टर्म होगा, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. अगर यदि रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन है या रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन है तो सो ये डिसऑनेस्टली का टर्म होगा. और फ्रॉडुलेंटली में ये डिफ्रॉड की बात हो रही होगी, जहां पर फ्रॉडिंग की बात हो रही है. ओनली फ्रॉडिंग मीन्स डिसीव. डिफ्रॉड होगा या डिसीव होगा तो वहां पे हम फ्रॉडुलेंटली की बात कर रहे होंगे. और सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट की बात करता है. तो एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस
बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स या और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, और यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस। अगर दिस इस ये टर्म जो एविडेंस, अगर इसको एविडेंस के तौर पे ले रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट के सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट के अंदर में कवर होगा। वो मीन्स डॉक्यूमेंट में वो कवर होंगे एनी मैटर जो एक्सप्रेस्ड है या डिस्क्राइब्ड है अपॉन एनी सब्सटेंस पे बाय मीन्स ऑफ लेटर्स के द्वारा या फिगर्स के द्वारा या मार्क्स के द्वारा या बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस। तो अगर उसको एविडेंस के तौर पे लिया जा रहा है तो आईपीसी में ये डॉक्यूमेंट माना जाता है, ये सेक्शन 29 के अंतर्गत फॉल करेगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 34 में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बार बार क्वेश्चंस इस पे आते हैं सेक्शन 34 पे। इसका मेन जो टर्म है, इसमें सबसे पहले कॉमन इंटेंशन, जिसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कॉमन इंटेंशन। तो ये इसका हेडिंग है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसका डेफिनेशन में फर्स्ट पार्ट है क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल। मीन्स कि अगर यदि कोई क्राइम, जैसे कोई क्राइम हो रहा है एक या दो, जैसे किसी ने मर्डर किया उसमें एक पर्सन था जिसने ओनली इन्वॉल्व, उसने किल किया, उसने गन से किल किया और उसको लाने में जो मदद कर रहा था उसको उस पर्सन को गन जो प्रोवाइड किया था, उसने जाके पूछा ओके, कोई आवाज प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर। ये सेक्शन 34 की बात मैं कर रहा हूं। तो इसमें क्या है कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पर्सन है, कोई तीन से चार पर्सन है, वो पर्सन जाता है किसी बैंक को रॉबरी करने के लिए। तो एक पर्सन क्या है, वो बाहर में खड़ा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो बाहर की बातों को बताने की कोशिश कर रहा है। अंदर में जो गया है, दो पर्सन अंदर गया है, और दो पर्सन जो रॉबरी कमिट कर या क्राइम कमिट कर रहा है, अंदर में रॉबरी बैंक से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, वो पर्सन अगर यदि बाद में पुलिस आ जाती है और तीनों पर्सन को पकड़ लेती है, तो ये फर्स्ट पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैं तो बाहर था, क्योंकि मैं तो बाहर था और अंदर में दो पर्सन ही क्राइम कर रहा था। तो ये सेक्शन 34 उस पर अप्लाई होता है कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन, ये दो से तीन पर्सन जो बाहर में, दो पर्सन अंदर थे, एक पर्सन बाहर था, तो अंदर वाले दो पर्सन जो हैं उनको सेक्शन 34 डील करेगा। कि सेक्शन 34 में बात कर रहा है कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। उन पर्सन जो बाहर में खड़ा था, उन पर्सन पर भी ये बताया जाएगा कि कॉमन इंटेंशन होने के कारण से सेक्शन 34 जब अप्लाई होगा तो वो पर्सन भी लायबल हो जाएगा, और जो पर्सन अंदर में गया था वो तो लायबल है ही। सेक्शन 34 में क्योंकि कॉमन इंटेंशन था ऑफ ऑल, कि तीनों पर्सन का कॉमन इंटेंशन था रॉबरी करने का, उसके कारण से ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल, ये सेक्शन 34 डील्स करेगा, क्योंकि वहां पर कॉमन इंटेंशन की बात थी, जो कि आप लोग आओगे इस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, सेक्शन 34 की बात होगी वहाँ पे। तो उसमें ढेर सारे केस भी पढ़ना होगा, 1 से 2 केस लॉ से जब पढ़ोगे आप तो उसमें समझ में आएगा कि क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है, तो वो कवर हो जाएगा। इनको आप अच्छे ढंग से कर लेना, सेक्शन 34 जो कि कॉमन इंटेंशन की बात करता है। और सेक्शन 40 उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 40 पे, जो कि ऑफेंस की बात करता है। तो सेक्शन 40 ऑफेंस है, और क्राइम तो आपको पता है कि क्राइम पनिशेबल नहीं है, आईपीसी में ओनली ऑफेंस पनिशेबल है। जो ऑफेंस है आईपीसी में ओनली वो पनिशेबल है, क्राइम पनिशेबल नहीं है। और ऑफेंस का डेफिनेशन है सेक्शन 40, जो कि ए थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। कोड किस चीज की बात कर रहा है यहाँ पे, कोड जो लिखा हुआ है, एनीवन टेल मी? ये कोड जो लिखा, सर यहाँ पे तो इंडियन पीनल कोड की बात हो रही है ना, हाँ, तो हाँ, कोड उसी के लिए लिखा गया है। हाँ, ये कोड बहुत सारे टर्म में आएंगे जहाँ पे कोड लिखा जाएगा, उसको इंडियन पेनल कोड की, मतलब कि क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड भी है और इंडियन पेनल कोड भी है,
तो जब हम इस आईपीसी की बात करेंगे तो कोड इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे होंगे, तो वो ऑफेंस में जो कि पनिशेबल बाय दिस कोड वो ऑफेंस माना जाएगा। और इसका सेक्शन 44 में चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंजरी की बात कर रहा होगा यहाँ पे। तो इलीगल हार्म कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड, फर्स्ट है बॉडी पे, सेकंड है माइंड पे, थर्ड है रिपोर्टेशन पे, और फोर्थ है रिपोर्टेशन या प्रॉपर्टी। अगर यदि इंजरी बॉडी में भी हो सकता है, माइंड में भी हो सकता है, रेपुटेशन पे भी हो सकता है, जैसे कि क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लगाया जाता है किसी पे। अभी आप लोग न्यूज में देखते होंगे कि राहुल गांधी या मोदी साहब पे केस करते हैं एक दूसरे पे केस कि मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है या कोई भी मैटर बोला गया तो उस पर वो ऐसी इंजरी के कारण से आता है। सेक्शन 44 जो डील करता है इंजरी, वो रिपोर्टेशन की बात करता है। और प्रॉपर्टी में जैसे कि थेफ्ट हो रहा होगा, डकैती हो रहा होगा, तो वो प्रॉपर्टी जब थेफ्ट रोबरी हो रहा होता है तो वो इंजरी की बात करता है उस मामले में। माइंड में जैसे कि ये बॉडी में तो हो गया ये मर्डर हो रहा होता है, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो टर्म हो रहा होता है, तो ये बॉडी को कवर करता है वहाँ पे। और माइंड तो नॉर्मली माइंड जो चल रहा है वो ओनली माइंड पे। तो ये बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी जहाँ भी ये टर्म आएगा तो सेक्शन 44 इंजरी उस चीज़ों में हो सकता है, बॉडी में भी हो सकता है, माइंड में भी हो सकता है, रेपुटेशन में भी हो सकता है और प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। सेक्शन 44 क्लियर हुआ? यस सर। इससे पहले जैसे सेक्शन 44 है, सेक्शन 40 है, सेक्शन 34 है। सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन, ये टर्म जो भी टर्म यहाँ पे नोट किया हुआ है इन टर्म को याद रखना है, क्योंकि इन टर्म पे ही क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मैं क्वेश्चंस का फॉर्मेट अभी आगे आने वाले क्लास में मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भेजूंगा। तो उन क्वेश्चंस में बिल्कुल जब ये देखना है ये टर्म की कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है तो सेक्शन 34 डील्स कर रहा होगा। और ये जैसे कि डिफ्रॉड की बात कर रहा होगा या डिसीव की बात कर रहा होगा तो फ्रॉडलेंटली में डील कर रहा होगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से पढ़ना नहीं है सेक्शन। अभी अगर इस तरह से पूरा एक अच्छा खासा लेक्चर लिया जाएगा इस पर तो वो बहुत लेंदी जाने वाला है, तो उनको हमको टर्म याद रखना है। जैसे डिसऑनेस्टली की बात कर रहा होगा तो इंटेंशन होगा जहाँ पे रॉन्गफुल गेन की बात हो, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ये बात हो रहा होगा। और ये रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस है जैसे सेक्शन 23। मोबाइल प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो एक्सेप्ट छोड़ करके लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, ये बात हो रहा होगा। और ये पर्सन तो पर्सन है। यहाँ तक कोई डाउट पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। आज थोड़ा सा जस्ट नॉर्मल लेते हैं, बाद में अगर यदि होगा तो उसके बाद फिर जैसे पीपीटी शेयर किया जाएगा तो आप लोग कुछ पढ़ के आ सकते हैं, तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा इस पर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। तो आज नॉर्मली रहने देते हैं, आगे आने वाले लेक्चर में थोड़ा सा पीपीटी मैं पहले ही पीपीटी या पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग पढ़ के और उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस दूंगा यहाँ पे, फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वो एक अच्छा खासा रहेगा। अभी थोड़ा सा बोरिंग सर लग रहा होगा कि कैसे चल रहा है, तो आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा और आसान हो जाएगा वो करना। अभी तक यहाँ तक कोई न समझ में आया हो बात? एनी स्टूडेंट? नो सर, सब क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि पनिशमेंट की बात करता है आईपीसी, सेक्शन 53 डील करता है पनिशमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा अच्छा ढंग से उसको। टोटल 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट होता है, जैसे कि फर्स्ट है डेथ। मर्डर में आपको मर्डर का सबसे लास्ट पनिशमेंट डेथ है। कल्पेबल होमिसाइड में डेथ नहीं मिलेगा। उसके बाद और भी ढेर सारे क्राइम हैं जिसमें पनिशमेंट आपको डेथ मिलेगा, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट नॉर्मल है। ये तो जैसे कल्पेबल होमिसाइड का सबसे लास्ट पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। imprisonment, and the third types of imprisonment है which is of two prescriptions, namely rigorous, that is with the hard labor, and the simple। तो एक imprisonment तो हो गया टोटल 20 years का, जो आप लोग जानते होंगे 20 years होता है imprisonment फॉर काउंटिंग के लिए। अगर यदि किसी को लाइफ imprisonment दिया जाता है तो उसका कितना, एक तो नॉर्मली हो गया होल लाइफ, और एक होता है जब काउंट किया जाता है कि हाफ ऑफ द लाइफ ऑफ imprisonment, तो उसमें लाइफ imprisonment का टर्म होता है 20 years। ये एक तो डेथ हो गया कंप्लीट डेथ, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसमें अगर यदि काउंट कर रहा हो तो 20 इयर्स के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट,
ये अगर यदि काउंट नहीं कर रहा हो तो आजीवन वो मरने तक, टिल द डेथ, वो हो गया सेकेंड टाइप। थर्ड में इम्प्रिजनमेंट, इसमें भी दो टाइप्स है। तो वो है फर्स्ट रिगरस, जिसमें कि कुछ काम करवाया जाता है हार्ड लेबर के साथ में, और एक सिंपल है। नॉर्मली सिंपल में 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हो सकता है। रिगरस में क्या होगा, तो उसमें कुछ विथ हार्ड वर्क लेबर, कुछ वर्क वहां पे करवाया जाता है, वो रिगरस हो गया। ठीक, ये 3 टाइप्स थर्ड हो गया। फोर्थ में फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, सामान का जो जब्ती किया जाता है किसी के प्रॉपर्टी को, वो हो गया फोर्थ में फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड द फिफ्थ इज फाइन, नॉर्मली फाइन लिया जाता है कुछ कुछ चीज़ों में। तो वो फिर ये 5 स्टेप्स के पनिशमेंट आपको पीसी में मिलेंगे। और ये सेक्शन 73 डील्स करता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो वो इसमें मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। जैसे कि मैक्सिमम 1 मंथ इफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ्स द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से 1 ईयर है। अगर यदि इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ से 1 ईयर तो मैक्सिमम 2 मंथ्स का मिल सकता है। अगर यदि इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर का तो मैक्सिमम 3 मंथ मिल सकता है। और अगर यदि 6 महीने से कम है तो उसका मैक्सिमम 1 मंथ है। ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट। पर्सन हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट and court may order that offender shall be kept in solitary confinement for a portion of imprisonment, means इसमें rigorous imprisonment होता है। तो ये मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए मिलेगा। जब 6 महीने के लिए होगा सजा, 6 महीने से 1 ईयर होगा तो मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए मिल सकता है, और मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज 1 ईयर। तो ये सेक्शन 73 डील्स करता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। ये हो गया। उसके बाद सेक्शन 74 है लिमिट्स ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेनली ये जो टॉपिक्स था ये डिफिनेशन टॉपिक्स था। इसके बाद हम लोग जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे। वो मैं आज के लिए शायद मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आज के लिए मैं इतने ही रहने देता हूँ।